નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ ન્યૂઝ. હું છું સંજીવની. બુલેટિનની શરૂઆત હેડલાઇન્સથી. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના દિલ્હી નિવાસે પહોંચી ઈડી, મની લોન્ડરિંગ મામલે પૂછપરછ. બિહારમાં સરકાર બનતા જ એનડીએ એક્શનમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દ્વારા સ્પીકરને હટાવવાની તૈયારી. રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાએ પશ્ચિમ બંગાળના દિનાજપુરમાં કરી એન્ટ્રી. સેંકડો સમર્થકો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ કર્યું સ્વાગત. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરીક્ષા પે ચર્ચા કરતા કહ્યું, દબાણ આવતું રહે તેને સહન કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. જાન્યુઆરી મહિનાના અંતમાં રાજ્યમાં જોવા મળ્યો ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો. રવિ પાક પર અસર થવાની ભીતિ. વિગતવાર સમાચાર. સૌથી પહેલા વાત ઈડીની ટીમ મની લોન્ડરિંગ મામલે તપાસ કરવા માટે ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના દિલ્હી નિવાસ સ્થાને પહોંચી હતી. ઈડીના અધિકારીઓ હવે તેમની પૂછપરછ કરી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે અગાઉ ઈડીએ 20મી જાન્યુઆરીએ મની લોન્ડરિંગ કેસના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનનું નિવેદન તેમના નિવાસે નોંધ્યું હતું. એજન્સીનો દાવો છે કે આ તપાસ ઝારખંડમાં માફિયા દ્વારા જમીનની માલિકીમાં ગેરકાયદેસર રીતે હેરફેર કરવામાં સામેલ એક મોટી ગેંગ સાથે સંકળાયેલો છે. ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના કાર્યકરોએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને ઈડી દ્વારા આપવામાં આવેલા સમન સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઈડીએ ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને એક નવું સમન્સ જારી કર્યું છે, જેમાં તેમને આવતા અઠવાડિયે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફરીથી તપાસમાં જોડાવા કહ્યું છે. હેમંત સોરેનને 29મી જાન્યુઆરી અથવા તો 31મી જાન્યુઆરીએ પૂછપરછ માટે આવવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक स्थिर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री के अच्छे काम को देखते हुए जो उनके अंदर बेचैनी हो गई है, उसको कैसे रोका जाए, इसलिए साजिश पर साजिश करके और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को फंसाने का, जो प्रताड़ित करने का जो साजिश किया जा रहा है, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है कि राज्य में चुनी हुई जो सरकार है, इस सरकार को साजिश के तहत गिराने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के खिलाफ में कार्यकर्ताओं के आह्वान पर आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम ये चलता रहेगा. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાએ પશ્ચિમ બંગાળના દિનાજપુરમાં તેમનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ કર્યો અને આ યાત્રામાં સેંકડો સમર્થકો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો જોડાયા હતા. ન્યાય યાત્રા 31મી જાન્યુઆરીના રોજ માલદા થઈને પશ્ચિમ બંગાળમાં ફરી પ્રવેશશે અને પછી મુર્શિદાબાદ થઈને 1 ફેબ્રુઆરીએ પશ્ચિમ બંગાળથી રવાના થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આ કાર્યક્રમમાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકોને ટિપ્સ પણ આપી હતી. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વખતે તણાવમુક્ત રહેવાનો મંત્ર આપ્યો. વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજની ભાવિ પેઢી પાસે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાને તૈયાર કરીને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા મહેનત કરવી જોઈએ. આ સાથે જ પરિવાર અને ટીચરે પણ બાળકોમાંથી નકારાત્મકતાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો. में प्रेरित करेगा. प्रधानमंत्री जी, राजमंद राजस्थान के छात्र धीरज सुथार, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंदवा में पढ़ते हैं, हमारे बीच इस हॉल में मौजूद हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं. धीरज, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदवा, राजसमंद, राजस्थान से हूँ. मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ. मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य.
कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। और आपकी ये चिंता भी सही होगी। धन्यवाद धीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलोगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबी लामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम तोबी लोमी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई, बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं। આગળ વાત કરી નીતિશ કુમારે એનડીએના સમર્થન સાથે બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે 9મી શપથ ગ્રહણ કર્યા બાદ હવે મોટો કાર્યવાહી કરી છે। રાજ્યમાં નવી સરકારની રચના બાદ એનડીએ હવે આરજેડી વિરુદ્ધ પ્રથમ કાર્યવાહી કરી છે અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ અવધ બિહારી ચૌધરી વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી છે। વિધાનસભા અધ્યક્ષને પદ પરથી હટાવવા માટે ભાજપના નંદકિશોર યાદવે વિધાનસભા સચિવને અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી છે। જો આરજેડી નેતા અવધ બિહારી ચૌધરી સ્પીકર પદ પરથી રાજીનામું નહીં આપે તો બહુમતીના મતથી તેમને હટાવી દેવામાં આવશે।
તૃણમૂલ કોંગ્રેસે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ફરી એકવાર ભાજપ સાથે હાથ મિલાવવા બદલ બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને દેશદ્રોહી કહ્યા છે। ટીએમસીના પ્રવક્તા કૃણાલ ઘોષે કહ્યું કે નીતિશ કુમારે માત્ર વિશ્વાસઘાત જ નહીં પરંતુ બિહારના સમર્થન ભાવનાઓ સાથે પણ દગો કર્યો છે। Nitish Kumar ji is a traitor. He betrayed with not only with Bihar people, not only with Bihar, he has cheated the support of Bihar, the sentiment of Bihar. He has joined his hands with BJP again. And interestingly, AITC was the first party that has realized this, and this is the reason why Didi was not up for his name as convener of India Alliance. ભારતીય આધ્યાત્મિક ગુરુ રામભદ્રાચાર્યએ નીતિશ કુમારના એનડીએ સાથે હાથ મિલાવવાના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું। अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, और तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। વર્ષ 2024-25 માટેના વચગાળાના બજેટમાં ભોપાલની જરી જરદોસીના હેન્ડવર્ક સાથે જોડાયેલી મહિલા કારીગરો તેમની કલાના વેચાણ માટે યોગ્ય પ્લેટફોર્મની માંગ કરી રહી છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે ભોપાલ શહેરમાં જરી જરદોસી હેન્ડવર્કનું કામ કરતી મહિલા કારીગરોને આશા છે कि सरकार तेमने तेमना उत्पादनों बेचवा माटे योग्य प्लेटफॉर्म आपशे। सरकार हम लोगों की सहायता करे। सरकार से हमें ये उम्मीद है, हम इसी जरिए पे तो काम कर रहे हैं कि हमें सरकार से कुछ मिले। जैसे हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठ कर ही करें, यहाँ पर ही कर लें, और तो ज्यादा हमारे यहाँ से जाने नहीं देते बाहर हम लोगों को, तो हम इस जरिए पे ये काम कर रहे हैं कि हम अपने घर पे भी ले जाकर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार लेडीज़ों की मदद करे और जितना भी रोजगार है वो गांव-गांव जाके दे, ताकि लेडीज़ें जितनी भी घर पे हैं परेशान हो रही हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो और कोई भी काम हो तो वो अपने घर पे सुकून से बैठ के कर सकती हैं। इस पहचान को बनाए रखना चाहिए और हर जगह लेडीज़ों के लिए काम होना चाहिए, चाहे वो जरी का हो या किसी और चीज़ का हो, लेकिन हर गाँव में सुविधा होना चाहिए लेडीज़ों के लिए। राज्य सरकारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हेठळ जरी जरदोसी हेन्डवर्क ने 8 वर्ग जाहिर कर्યું છે, જેથી મહિલાઓને અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ઘરેલુ મહિલાઓને તાલીમ આપવા માટે તાલીમ કેન્દ્રો બનાવ્યા છે, જેથી તેઓ તેમની કલામાંથી કમાણી કરી શકે। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत है कि इंसान के हाथ भी दुखते, आँखें ज़्यादा तकलीफ देती हैं और कठिन तो बहुत है, बस ये जिसको आ जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इनकम अच्छी मिलती है। ये भोपाल का काम है तो इसे हम चाहेंगे कि सरकार बाहर पहुंचाए, बाहर के देशों में पहुंचाए, और जो ये लोग हैं ये लोग सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये लोग भी आगे बढ़ें। सरकार इससे सहूलियत दे, इन्हें फैसिलिटी दे, काम दे। महिलाएं जो हैं वो मार्केटिंग नहीं कर सकती तो सरकार इन्हें मार्केटिंग का काम घर बैठे दे। ये बहुत बारीक काम रहता है तो इसमें बहुत टाइम भी लगता है और ये बहुत ज़्यादा समय में दीदियाँ सीखती हैं, लेकिन एक बार सीखने के बाद दीदियाँ बहुत अच्छा काम कर लेती हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ये दीदियाँ अपने अपने घर पे काम करती हैं। मेरी सरकार से बस एक ही अपील है, जो भी दीदियाँ ये काम करती हैं तो इनको ज़्यादा मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो जो दीदियाँ ये काम कर रही हैं इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे जो बना रही हैं तो इनको अच्छे दाम पे सही इनका मेहनत का पैसा इनको मिल सके। તાલીમ મેળવેલી આ મહિલાઓ માત્ર તેમના પરિવારજનોને જ ટેકો આપી રહી છે તેવું નથી, પરંતુ ભોપાલના સમૃદ્ધ વારસાને પણ સાચવી રહી છે। ये वर्क जो है ये बहुत पुराना चला आ रहा है, नवाबी टाइम से चला आ रहा है। लोग आज भी लोग जो है ना बहुत पसंद करते हैं। यंग जनरेशन जो है बहुत इसको लाइक कर रही है, उनके लिए बहुत उनके लिए नई चीज़ होती है।
तो ये तो बहुत पुराना काम है और बहुत पसंद आता है और सब बहुत खूबसूरत भी होता है ये वर्क। हालांकि मेहनत होती है इसमें, हैंडवर्क बहुत होता है और आज के टाइम में जो है उसकी कॉस्ट नहीं निकल पाते, लेकिन लेबर लगती है, मेहनत करते, फिर भी उसको जिंदा रखे हुए इस वर्क को, काम हो रहा है, आज भी आ रहा है मार्केट में। આ વચગાળાનું બજેટ નવી સરકાર રચાય ત્યાં સુધી સરકારના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલાનું વોટ ઓન અકાઉન્ટ બજેટ હશે। લોકસભાની ચૂંટણી થયા બાદ અને નવી સરકાર રચાયા બાદ આ વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી। વર્ષ 2024-25 માટેના અંતરિમ બજેટથી રાજસ્થાનના ડીડવાનામાં આવેલા મીઠા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકોને આશા છે કે સરકાર તેમની માંગણીઓ પર ધ્યાન આપશે। મોદી સરકારનું વચગાળાનું બજેટ રજૂ થવામાં હવે થોડા દિવસો બાકી છે, ત્યારે વિવિધ ઉદ્યોગો આ બજેટ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે। રાજસ્થાનના ડીડવાનામાં આવેલ સોલ્ટ લેકની આસપાસના મીઠા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકોને આશા છે કે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી निर्मला सीतारमण વચગાળાના બજેટમાં તેમની જરૂરિયાતો પર ખાસ ધ્યાન આપશે। सरकार जब ये बजट पेश करती है तो किसानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और सभी अन्य क्षेत्रों में जब ध्यान देती है, लेकिन हमारे यहाँ साल्ट लेक में सरकार का कोई फोकस नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब सरकार का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ पे साल्ट लेक केंद्र सरकार के आती है, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान में नहीं है। यहाँ सरकार के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम मजदूर लोगों के भी बहुत मतलब यहाँ पे नुकसान है, कोई मजदूरी नहीं है यहाँ पे और न ही नमक व्यापार में कोई बेनिफिट है। यहाँ पे आज 20-20 साल से डूबी हुई है तो गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे को किधर भी रोजगार देवा, हमारे पास कुछ है नहीं कमाने के लिए। यही तो हमारे बडेरू से चल रही थी और आज 20 साल से कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। મીઠું પકવવાના મુશ્કેલ કામ કરતી વખતે અકસ્માતનો ભોગ બનેલા કામદારો માટે મીઠાના ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और शिक्षा की ओर अग्रसित है। सरकार हर बार नई नई योजनाएं लेके आती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये लवण सोर्स है, इसकी ओर सरकार ध्यान दे और आने वाले बजट में इसको केंद्रित करे। इससे हजारों लोगों को आय का सोर्स है, नवा भी है, डीडवाना भी है और पचबदरा भी है। ये सरकारी लेक है, निजी है नहीं, तो इसकी ओर सरकार ध्यान केंद्रित करे। जो यहाँ पे गंदा पानी यहाँ पे डाला गया है, उससे हमारे नमक झील को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ नमक बनने में हमारी दिक्कत आ रही है और हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, जो भी हमारा बजट आता है, जो इससे नमक श्रमिकों को भी कुछ ना कुछ फायदा दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो यहाँ नमक श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मुआवजा या कुछ ऐसा करे जहाँ पे जो नमक श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं उसको किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, उसमें सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और उन्हें कुछ न कुछ मुआवजा प्रदान करे। લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી બાદ નવી સરકાર રચાયા બાદ જુલાઈમાં રજૂ થનારા નવા બજેટમાં આ અગરિયાઓને કોઈ રાહત મળે છે કે કેમ? પરંતુ ચૂંટણી પહેલાના વચગાળાના બજેટમાં રાહત મળવાની તેમને પૂરેપૂરી આશા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ગોરખનાથ મંદિરમાં રુદ્રાભિષેક કર્યો હતો। ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે સોમવારે ગોરખપુરના ગોરખનાથ મંદિરમાં રુદ્રાભિષેક કર્યો અને રાજ્યની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી। આ તરફ અયોધ્યામાં શ્રી રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાથી લઈને અત્યાર સુધીમાં 6 દિવસમાં 18.75 લાખથી વધારે રામ ભક્તોએ મંદિરમાં દર્શન પૂજન કર્યું છે। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ પ્રથમ દિવસે એટલે કે 23મી જાન્યુઆરીના રોજ મંદિરના કપાટ ભક્તો માટે ખોલી નાખવામાં આવતા લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા। મળતી માહિતી પ્રમાણે દરરોજ 2 લાખથી વધારે રામ ભક્ત શ્રી રામલલ્લાના દરબારમાં દર્શન પૂજન કરી રહ્યા છે। અયોધ્યા નગરથી લઈને મંદિર પરિસર દિવસભર જય શ્રી રામના જય ઘોષથી ગુંજી રહ્યા છે। દેશ વિદેશ, વિવિધ રાજ્યો અને ઉત્તર પ્રદેશના વિવિધ જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ શ્રી રામલલ્લાના દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે। રામલલ્લાની મૂર્તિ બનાવનાર અરુણ યોગીરાજ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતને મળ્યા હતા। કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતે સોમવારે બેંગાલુરુમાં રામલલ્લાની મૂર્તિ બનાવનાર અરુણ યોગીરાજનું સન્માન કર્યું। રાજ્યપાલને મળ્યા બાદ યોગીરાજ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને પણ મળ્યા હતા।
અયોધ્યામાં નવા રામ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલી ભગવાન રામની મૂર્તિના ફોટોની ભક્તોમાં ખૂબ જ માંગ છે। 23મી જાન્યુઆરીએ મંદિર સામાન્ય લોકો માટે ખુલ્યા બાદથી લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો રામ મંદિરના દર્શન કરી રહ્યા છે। ભક્તો રામલલ્લાની મૂર્તિની લેમિનેટેડ અને ફ્રેમવાળી પ્રિન્ટને ઘરે પરત લઈ જવા માટે ખરીદી કરી રહ્યા છે। માત્ર પ્રાર્થના કરવા માટે જ નહીં પણ તેને ભેટ તરીકે આપવા માટે પણ ખરીદી કરી રહ્યા છે। ભગવાન રામની મૂર્તિના ચિત્રોની માંગમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે अयोध्या स्थानिक व्यापारियों खुश है। ये हम लोग तस्वीर खरीदने आए थे रामलला का, जो कि अपने गांव में अपने घर में रखकर इसको प्राण प्रतिष्ठा करके इसको पूजा जाएगा। फोटो तस्वीरें भगवान श्री राम की ये खरीदने आए हैं और जो राम जी की छवि है, जो वहाँ पर 5 वर्ष के श्री राम प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है ना, और हमें 500 वर्ष के बाद हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो हम भगवान राम के दर्शन करने यहाँ पर आए हैं। बिक्री तो इस टाइम बढ़ गई है बहुत। जो लोग कहते थे कि मंदिर बनने से क्या होगा, तो मंदिर बनने से विकास ही विकास हो रहा है। प्रतिमा अचानक जो है भक्तों का डिमांड था, तो अचानक हम लोगों ने अवेलेबल कराया। इसको जो है फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने इसको जो है लेमिनेशन करके बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों का डिमांड था तो उसको पूरा करना था। लोगों के घर घर पहुँचे रामलला जी, ये हमारी इच्छा है। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ અંતર્ગત સંવાદ કરી રહ્યા છે। સીધા જઈએ છે ત્યાં। मैं समझता हूं कि हमें आदत डालनी चाहिए कि भाई हम निर्णायक बने। निर्णय लेने से पहले 50 चीजों को हम बारीकियां देखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखें, प्लस माइनस पॉइंट के लिए किसी से पूछे, लेकिन उसके बाद हम निर्णायक बने। और इसलिए कंफ्यूजन किसी भी हालत में आप किसी के लिए अच्छा नहीं है। अनिर्णायकता और खराब होती है और उसमें से हमने बाहर आना चाहिए। थैंक यू। सर, निर्णय की स्पष्टता में ही सफलता निहित है। आपका यह कथन सदा याद रहेगा। धन्यवाद। शांत समुद्र तट, चित्रमय गलियां और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध नगर पुडुचेरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सदरापट की छात्रा दीवश्री हमारे बीच इस सभागार में मौजूद हैं और अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। दीवश्री, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते, वणक्कम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। वणक्कम वणक्कम। My name is Deepasri. I am coming from Government Higher Secondary School, Sedrapat, Puducherry. My question is, how can we build our trust in parents that we are working hard? Thank you, sir. धन्यवाद दीवश्री। प्रधानमंत्री जी, हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इस विषय पर दीवश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। आपने सवाल पूछा है, लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में, जो आप पूछ नहीं रही है। दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत तो ऐसे किया घर में कोई नाराज न हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है,
एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं और माँ बाप ने अगर बाद में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते। यार उसने तो कहा था वहां जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, सोया पड़ा है। आप कहते थे कि मां मैं अब 1 सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन छुपके से दिख रहा है मां को घरे, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। उसी प्रकार से मां बाप को भी सोचना चाहिए। कुछ मां बाप को ऐसी आदत होती है, जैसे मान लीजिए किसी मां बाप ने, मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है और बेटा आया है, किसी न किसी कारण से उसका खाने का मन नहीं है, लेकिन बहुत कम खाया, तो मां क्या कहेगी? जरूर कहीं खा करके आए होंगे, जरूर किसी के घर में पेट में भर करके आए होंगे। तो फिर उसको चोट पहुंचती है, फिर वो सच बोलता नहीं है। फिर मां को ठीक रखने के लिए, ठीक है चलो अच्छा लगे बुरा लगे, मैं जितना मुंह में पोस्ट ऑफिस में डालता हूं डाल दूंगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है। हर घर के अंदर ये अनुभव आता होगा। आपको माताजी ने, पिताजी ने मानो आपको पैसे दिए और आपको कहा 1 महीने का तुम्हारा ये 100 रुपया तुम्हें देते हैं पॉकेट का, और फिर हर तीसरे दिन पूछते हैं वो 100 रुपये का कह दिया। अरे भाई तुमने 30 दिन के लिए दिया है ना, दूसरा मांगने तो आया नहीं तुम्हारे पास, तो भरोसा करो ना। अगर भरोसा नहीं तो नहीं देना था। ज्यादातर मां बाप के केस में ऐसा होता है, रोज पूछते हैं अच्छा वो 100 रुपया, हाँ कोई ये तो पूछ सकता है, पूछने का तरीका हो सकता है। कोई कहे बेटा उस दिन पैसे नहीं थे, तुम्हें 100 ही रुपये दिए थे, तुम चिंता मत करना, जरूरत पड़े तो कह देना। तो उस बेटे को लगे नहीं मेरे माता पिता ने मुझे 100 रुपया, देखो ये आपकी पसंद की बात आई तो ताली बजाते हो आप लोग। अगर वही सवाल ये पूछते 100 का क्या किया, इसके बजाय ये कहते तो बेटा कहेगा ना मां बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं, सफिशिएंट है। यानी हमारा एक दूसरे के बीच बात करने का तरीका कैसा है, ये चीजें सामान्य जीवन में जो अनुभव आती हैं वो फिर धीरे 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 एजुकेशन सिस्टम के साथ रोजमर्रा की हमारी अपेक्षाएं होती है, उसके टकराव में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर कहा मार्क्स क्यों नहीं आए, बस तुम पढ़ते ही होंगे, ध्यान देते ही नहीं होंगे, क्लास में बैठते नहीं होंगे, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते होंगे, हो सकता है वो पैसे हैं सिनेमा देखने चले गए होंगे, मोबाइल फोन पर रील देखते होंगे। फिर वो कुछ न कुछ कहना शुरू हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है। पहले ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, और ये दूरी
कभी कभी बच्चों को डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। और इसलिए माँ बाप के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से टीचर्स ने भी बच्चों के साथ इतना खुलापन रखना चाहिए, सहज रूप से अपनी बात कह सके। अगर उसको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कोई टीचर हड़का देगा, तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला तो बाकियों को विद्यार्थियों का टाइम खराब मत करो, बैठ जाओ। कभी कभी क्या करते हैं टीचर भी, जो 4-5 होनहार बच्चे होते हैं ना, उनको वो बहुत प्रिय लगते हैं, उनसे उनका मन लग जाता है। बाकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो जाने उनका नसीब जाने, ये 2-4 में अपना मन लगा देते हैं, सब चीजें वाहवाही उन्हीं की करते रहते हैं, वही रिजल्ट देकर गए। अब आप उसको कितना आगे ले जा पाते हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो है वहां से नीचे गिरा देते हैं। और इसलिए कृपा करके आपके लिए सभी स्टूडेंट समान होने चाहिए, सबके साथ इक्वली। हाँ, जो तेज होगा वो अपने आप में से जो अमृत है वो ले लेगा, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके प्रति अगर आप सिंपैथेटिक, और उसमें भी मैं मानता हूं उसके गुणों की तारीफ कीजिए। कभी एक बच्चा बिल्कुल वीक है पढ़ने में, लेकिन उसके हैंड राइटिंग अच्छे है, तो उसके सीट पे जाकर के, अरे यार क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितने हैंड राइटिंग तुम्हारे अच्छे हैं, क्या स्मार्टनेस है तुम्हारी। कभी ऐसा एक डल विद्यार्थी है, अरे यार तेरा कपड़ा बहुत शर्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो आपके साथ खुलने लग जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा कि ये शॉप के प्रति मेरे प्रति उनका ध्यान है। अगर ये सहज वातावरण बन जाएगा तो मैं नहीं मानता हूं कि, लेकिन ये विद्यार्थियों का भी उतना ही दायित्व है, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मेरे घर के लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। ये किसी भी हालत में हमारे आचरण से हमारे परिवार के, हमारे टीचर का हम पे भरोसा उठना नहीं चाहिए। हमसे कुछ नहीं हुआ तो कहना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि परिवार में एक प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटे या बेटी के 5 दोस्त हैं, तय कीजिए कि महीने में एक बार 2 घंटे वो 5 परिवार किसी एक परिवार में एकत्र होंगे, दूसरे महीने दूसरे परिवार में, बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे। और उसमें बच्चे बूढ़े सम हो गए, ऐसा नहीं कि 2 लोगों को घर छोड़ के आ जाएंगे। 80 साल के माँ बाप भी अगर फिजिकली फिट है आ सकते हैं, उनको भी लेके आइए। और फिर तय कीजिए कि आज वो जो तीसरे नंबर का दोस्त है, उसकी माता जी एक कोई पॉजिटिव बुक पढ़ करके उसकी कथा सुनाएगी। अगले बार तय किए जो 4 नंबर का दोस्त है, उसके पिताजी एक कोई पॉजिटिव मूवी देखा होगा तो उसकी कथा सुनाएंगे। जब भी आप 1 घंटे का गेट टुगेदर करें, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के साथ, किसी रेफरेंस के साथ पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें, वहां के किसी के रेफरेंस से नहीं। आप देख लेना, धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी पर्कुलेट होगी। और यही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके बच्चों के प्रति नहीं, अंदर अंदर भी ऐसा ट्रस्ट का वातावरण बना देगी कि आप सब एक इकाई बन जाएंगे, एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। और मैं मानता हूं ऐसे कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद।